My precious and loving children of God, I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus मेरे Christ. बहुमूल्य और प्यारे प्रभु के बच्चों, मैं आप हर एक को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से बधाइयाँ देती Today हूँ। the promise was given to us is from Hosea chapter 14 verse 6. आज हमारा प्रतिज्ञा वचन होशो पुस्तक अध्याय 14 वचन 6 से है। His young shoots will grow, his splendor will be like an olive tree. उसकी शाखाएं जैतून के पेड़ सी बढ़ेंगी, वे सुंदर हो जाएगा। About whom it is mentioned here? यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? About the people of Israel, it is mentioned here in a beautiful way. यहाँ पर इस्राएलियों के बारे में बहुत ही सुंदर तरह से बताया गया है। If you read Psalm 135 verse 4, it says, For the Lord has chosen Israel for himself, for his special treasure. भजन संहिता 145 वचन 4 में ऐसे लिखा है, यहोवा ने याकूब को चुना था, अर्थात इस्राएल को अपने निज धन होने के लिए चुन लिया है। Yes, the people of Israel, they were chosen by the Lord. हाँ, इस्राएल के लोगों को प्रभु ने चुना था। Israel for himself, for his special treasure. इस्राएल को अपने निज धन होने के लिए चुन लिया था। And Isaiah 44 verse 21 says, एशाया अध्याय 44 वचन 21 में लिखा है कि Remember these, O Jacob and Israel, for you are my servant. I have formed you, you are my servant. O Israel, you will not be forgotten by me. This is what the Lord says about Israel. हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना बिसारूंगा। परमेश्वर इस्राएल के बारे में यही कहते हैं। In the same way, my children of God, if you accept Jesus as Savior, you are the child of इसी God. तरह मेरे प्रभु के बच्चों, अगर आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानोगे, आप भी उनके बच्चे बन जाओगे। Isaiah 48 verse 17 says, Thus saith the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord your God, who teaches you to profit, who leads you by the way you should एशाया go. 48 वचन 17 में लिखा है कि यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वे यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे भले के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। If you read the Old Testament, you can read how the Israelites were chosen by the Lord and they were drawn by the Lord and they were so close अगर to आप the Lord. पुराने नियम को पढ़ोगे तो आप जानोगे कि इस्राएल लोग परमेश्वर के द्वारा कैसे चुने गए थे, प्रभु के द्वारा कैसे आकर्षित और प्रभु के कितने The करीब Lord थे। says, I have formed you, you are my servant. O Israel, you will not be forgotten by me. प्रभु कहते हैं, मैंने तुझे रचा है। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना बिसारूंगा। Even today, as Paul writes in Galatians chapter 2 verse 20, my friends, we can receive the same blessing. आज भी मेरे दोस्तों, जैसे पौलुस गलातियों पुस्तक अध्याय 2 वचन 20 में लिखते हैं, हम भी उस आशीष को पा सकते हैं। How to have such a close walk with the Lord? प्रभु के साथ इतना घनिष्ठ संबंध कैसे स्थापित किया जाए? Galatians 2:20, Paul writes, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me on the cross. गलातियों 2:20 में पौलुस लिखते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। So many blessings God has prepared for you, my brother, my sister. इतनी सारी आशीषों को प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार किए हैं मेरे भाइयों और Have you बहनों। given your life to the Lord? क्या आपने आपका जीवन प्रभु को दिया है? Have you accepted Jesus as Savior? क्या आपने यीशु को आपका उद्धारकर्ता मान लिया है? Are you washed by the blood of Jesus Christ? क्या आप लोग यीशु मसीह के लहू से धुले हो? Yes, even now you can submit your life
You can bring everything in the hands of God, and He will give you the greatest blessing, all these blessings to have a close communion with और the Lord. आज भी आप लोग अपना जीवन यीशु को समर्पित करो, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और वह आपको परमेश्वर का सबसे बड़ा आशीष, घनिष्ठ संबंध परमेश्वर के साथ देंगे। Shall we pray? चलिए हम प्रार्थना करें। Father, those who are looking unto you, you know their heart's desire. हे पिता, जो लोग अभी प्रार्थना कर रहे हैं उनकी मन की इच्छा को आप जानते हो। Everyone's heart is an open book before you, O Father. हर एक का मन खुली पुस्तक के समान आपके सामने है पिता। Those who want salvation, Lord, give them the salvation. जो लोग उद्धार चाहते हैं, हे पिता उन्हें उद्धार दे दीजिए। Cleanse their lives, Father. उनके जीवन को शुद्ध करो पिता। Give them salvation right now. अभी उन्हें उद्धार दे दीजिए। Let them become your children. वे लोग आपके बच्चे बन जाएं। Bless them, Lord. प्रभु उन्हें आशीष कीजिए। Give them all the other blessings. उन्हें सारी आशीषें दे दीजिए। Give them grace to have a close communion with you, O Father. वे आपके साथ घनिष्ठ संबंध रखने के लिए अनुग्रह कीजिए। Make them your children. उन्हें आपके बच्चे बना लीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।